Hello, wonderful souls. I hope you are having a blessed time. I am your host, Dr. Rohit Bansal, and welcome to the podcast Healing Emotional Triggers with Daily Spiritual Practices. The main purpose of this podcast to discuss emotional triggers and how can we identify these emotional triggers which impact our emotional and mental health, as well as we will discuss daily spiritual practices which can be implemented in order to heal and overcome these emotional triggers. So now it is the time to welcome our guest for this podcast, Mr. Hitesh Tuteja. He is a speaker, counseling psychologist, emotional intelligence expert, and meditation coach. He has participated as a resource person in many conferences and workshops and contributing to the development of society. Thank you so much, sir, for being part of this podcast, and I am hopeful that it is going to be an exciting one. Over to you. Thank you. Thank you so much. Glad to be here Mm. and very important topic to discuss Yes, because the life is surrounded with triggers. yes, The whole day we have some kind of triggers, mm, internal as well as external. mm, For example, when we open our mobile phone, we go to Instagram, it is full of triggers. yes, We watch someone doing something, or yes, yes, some people watch something, not so good content. yes, So the something in the mind gets triggered, and the past memories, addictions, all those thoughts, something gets triggered, yeah, like, and we all have been there. When it is get triggered, mm, nothing can help us, nothing works. mm, Like, we try to talk to ourselves, we try to make ourselves understand that, oh, this is unhealthy, don't do that, but things get out of our hands at that time. yes, um, we feel like miserable, helpless, like we feel like I don't have control over my mind, mm, and that is actually not a very good feeling. And we all have been there, and we all have done something which which may regret later. right, Some of us may regret right now also, mm, even after so many years. Look at the criminals, mm, like a moment of temper, a moment of anger mm, has made them do something very horrible, and yes, yes, their whole life has turned upside down. So it's very, very important to understand the psychology behind it, and how to heal it, how to not get triggered and have a very beautiful, peaceful, calm life, and right. living a life of purpose. तो सबसे पहले आप हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर थॉट्स इमोशंस एंड स्पिरिचुअल जर्नी. जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप घर में हैं, आपके बच्चों ने, आपके हस्बैंड ने, वाइफ ने, है ना, ऑफिस में किसी ने भी, किसी भी तरह का रिलेशन हो, किसी ने कुछ कह दिया, एंड वो बात ऐसी कह दी, चाहे वो मजाक में की हो, पर उस वर्ड से, मान लीजिए किसी ने ये कह दिया कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आप किसी काम के नहीं हो। मान लीजिए उस सेंटेंस की एक मेमोरी है जो मे बी 20 साल पहले की हो, जब वो इंसान छोटा था और उसे किसी बड़े ने कहा था, या किसी के पेरेंट्स ने कहा था कि आई डोंट थिंक सो कि आप इतने अच्छे हो, या किसी फ्रेंड ने कहा हो, टीचर ने कहा हो कि अरे आप किसी काम के नहीं हो। तो क्या होता है, हमारा माइंड, एक आदत होती है उसे, लाइक हमारा जैसे लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, उसमें स्टोर्ड फोटोज होती है ना। सो सिमिलरली हमारे माइंड में बहुत सी मेमोरीज होती हैं जो 95% दिखाई नहीं देती, पर उस पर्टिकुलर सेंटेंस की वजह से वो सारी जो मेमोरीज थी उस सेंटेंस के अराउंड, उस वर्ड के अराउंड, वो सारी
ट्रिगर्ड हो जाती है, वो Right. सरफेस पे आने लग जाती हैं, वो बातें याद आने लग जाती हैं, वो मोमेंट्स याद आते हैं, और वो अच्छे नहीं होते, वो एंजाइटी से भरे हुए होते हैं, वो मे बी हेट्रेड से भरे हुए होते हैं। तो क्या होता है, वो थॉट लेवल पर ये थॉट आते हैं कि मे बी मैं अच्छा नहीं हूँ। इमोशंस के लेवल पर वो रेग्रेट आता है, वो गुस्सा आता है, वो अगेन हेल्पलेसनेस आता है कि मैं छोटा था, मैं कुछ नहीं कर पाया, उस समय उन्हें जवाब नहीं दे पाया। तो ये एक साथ इतने सारे इमोशंस एक साथ हावी हो जाते हैं, और एक टर्म बोलते हैं एमिगडेला हाईजैक, Yes. है ना हमारे, आई एम श्योर आपने सुना होगा। Yes, yes. तो ब्रेन में एक पार्ट होता है एमिगडेला, जो रीजनिंग के लिए जरूरी होता है, लेकिन उस समय वो हाईजैक हो जाता है, वो रैशनल थिंकिंग नहीं कर पाता, वो इमोशनल जो रेज आया उसमें चला जाता है, और वो पास्ट से एसोसिएट करता है। नाउ अब क्या हुआ कि जो मेरे साथ इंसान थे, उन्होंने तो एक ही लाइन बोली, वो भी शायद मजाक में बोली होगी, बहुत लाइट मोमेंट में बोली होगी, बट जस्ट बिकॉज मेरा पुराना वो ट्रिगर हो गया, पुराना हील नहीं हुआ इमोशनल पेन, सो व्हाट आवर ब्रेन थिंक इज कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है इस पेन के। तो एक आदत होती है प्रोजेक्ट करने की, कि हम खुद को नहीं करते, हम अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट को प्रोजेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि मौसम ऐसा है, लोग ऐसे हैं, आप ऐसे हो, इस वजह से ऐसा हुआ, और उस वजह से वो जो रिलेशनशिप अच्छा भी होना चाहिए, वो थोड़ा सा उसमें कड़वाहट आने लग जाती है, तो और ज्यादा वो पहले ही वो हीलिंग नहीं हुई थी, तो और इमोशनल पेन एड ऑन हो जाता है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ती रहती है। रिलेशनशिप्स में जो डायनेमिक्स होते हैं, वो पॉजिटिव की जगह थोड़ा नेगेटिव होने लग जाते हैं। तो ये होता है ट्रिगर, जो हमारी लाइफ में मोर और लेस आता ही रहता है, दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। And it differentiates from individual to individual. एब्सोल्युटली। सी अगर एक घर में दो ट्विंस भी होंगे ना, हाँ, तो उनके भी दोनों के ट्रिगर्स अलग अलग हैं। अलग अलग होंगे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स कैसे थे, उनके उनका ग्रोइंग अप वो कैसे थे, उन्होंने थिंकिंग क्या पैटर्न अलग अलग है उनका। यस एब्सोल्युटली। तो वो डिफरेंस हो ही जाता है, किसी के चाइल्डहुड में क्या हुआ, किसी ने हार्डशिप्स कितनी आई लाइफ में, कोई कंफर्ट में कितना रहा, बहुत से फैक्टर्स एक साथ मिलकर उन बातों को डिसाइड करते हैं। राइट। इसी से कनेक्टेड एक और बात है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों अलग अलग क्यों होते हैं इमोशनल ट्रिगर्स? क्योंकि सी दोनों बातें अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे इंटरनल ट्रिगर्स कुछ और होंगे, फॉर एग्जाम्पल बाहर से कुछ नहीं आ रहा, एवरीथिंग आउटसाइड इज परफेक्ट, पीपल आर काइंड टू मी, पीपल आर लविंग टू मी, दे आर लविंग मी सो मच, दे आर हेल्पफुल टू मी, एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल अंदर एक पेन होता है, जिस वजह से कुछ सब कुछ अच्छा होते हुए भी इंसान खुद का दुश्मन बन जाता है ना। कहते हैं ना कि इंसान ही खुद का दुश्मन होता है। हमारा माइंड जानबूझकर हम बैठे हैं, प्रेजेंट में है, सब कुछ अच्छा है, बट वो पास्ट का कुछ याद दिला देगा विदाउट एनी ट्रिगर, जस्ट बिकॉज आप बैठे हो, और एक माइंड को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है जब तक वो पास में ना जाए। वो कुछ ना कुछ बातें आपको याद दिलाएगा, वो कहेगा अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो। प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वो ऑनेस्ट हैं, वो लविंग हैं, बट इनर जो अभी भी ट्रॉमास बचे हुए हैं, जो हील हमने नहीं किए, जो हम आगे बात करेंगे ही कैसे करेंगे, पर पहले हम इसे समझ रहे हैं, तो उस वजह से वो पुराना बार बार आता रहता है।
अब एक्सटर्नल ट्रिगर जो हमने शुरू में बात की, वो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ मोबाइल place, फोन. even a हम place, इवन अ प्लेस, दैट्स अ वेरी गुड like पॉइंट कि हाँ. सपोज किसी को ऊंचाई से डर लगता है, हिल्स पे जाके डर लगता है, फोबिया है, तो वो उसको ट्रिगर कर जाता है, वो बार बार उस चीज को हिट करता है और वो एंजाइटी में पड़ जाता है। हाँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो वो कुछ भी हो सकता है ना, कि एक इंसान की वजह से हो सकता है, कोई एनवायरनमेंट ऐसा है, ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा है, घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, पेरेंट्स ऐसे हैं, या फिर आई वुड से आज के लाइफ में सबसे बड़ा ट्रिगर हमारा मोबाइल है. तो हम सोशल मीडिया खोलते हैं, कोई कुछ पोस्ट कर देते हैं, यू नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट यू नो एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू से एनीथिंग. फिर तो हम वो सोचते अपने हैं कि किसने जेंडर फीडबैक को दिया, किसने लेकर. नहीं दिया, इतना ज्यादा सोचते हैं उस पोस्ट को लेके. वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट पोस्ट टाइम एंड अगेन. सो आई थिंक इट इज ट्रिगर फॉर यस, दैट पर्सन इफ यू आर थिंकिंग दैट वे. यस, यस. सी, वो क्या है कि हम पोस्ट करते हैं, हम देखेंगे जैसे, फिर कमेंट सेक्शन में बहुत लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, है ना. वो ट्रिगर ये है कि हम किसी को देखते हैं, हम कहते हैं इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया. एंड जनरली लोग, यू नो, दे आर फुल ऑफ पेन, सो दे डोंट टेक थिंग्स इन अ वेरी गुड वे. दे फील कि एवरीवन इज अगेंस्ट मी, तो वो इसी भी में मैं ट्रिगर हो जाता. एड ऑन करना चाहता हूँ, आजकल जो सबसे बड़ा ट्रिगर जो है हम लोगों के लिए वो है रिलेशनशिप इश्यूज. कितने ज़्यादा आजकल ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स विच इज़ इम्पैक्टिंग आवर डे टू डे लाइफ. तो हमें उसको अवॉइड करना होगा. जो हो चुका वो हो चुका, बट पीपल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस. Yes, absolutely. And there is a very beautiful quote. I say this every time I meet people, and that is that if you don't heal what hurt you, Right. you will bleed on people who didn't cut you. तो जैसा आपने कहा कि पास्ट के ट्रॉमास हैं, किसी ने चीट किया होगा, किसी ने झूठ बोला होगा, Whatever it is. Yeah. whatever it is, but now एक मेरी लाइफ में एक नया इंसान है जो ऑनेस्ट भी है, जो जेन्युइन है, सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल वो मैंने पुराना हील नहीं किया. इस वजह से आई फील इनसिक्योर. आई फील कि ये भी वैसे ही कर रहे होंगे. वो पास्ट का बैगेज हम सबके रिलेशनशिप में आता है, और दैट्स व्हाई दो अगर आप स्टैट्स देख लीजिए, द डाइवोर्स रेट इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग. इंडिया में शादी बचाने के लिए Divorce is a सोसाइटल different thing, प्रेशर and रहता है. in young generation, breakups has become a part and parcel of life. Instantly, जो है एकदम से ब्रेकअप हो जाता है, एंड देन वो शेल में चले जाते हैं लोग, उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इट हैज हैपेंड. तो वो सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर है आज की यंग जनरेशन के लिए. यस, एब्सोल्युटली. एंड बिकॉज वो हम उससे सीखते नहीं है, सिर्फ लोग चेंज हो जाते हैं. एक इंसान रिलेशनशिप में आया, मिस्टेक्स वो वही कर रहे हैं. द बिगेस्ट मिस्टेक दे आर डूइंग इज in relationship right now, people are don't have patience, don't have patience, and don't trust each other. because एक belief है, वो क्या है कि I am incomplete and you are supposed to make me complete. मैं तो खुश नहीं हूँ लाइफ में, आप आओ, मुझे ठीक करो, मुझे प्यार दो, मुझे भरपूर करो, ये आपकी ड्यूटी है, you are entitled for that. एक रिश्ते की शुरुआत ही ऐसे हो रही है, तो it cannot sustain for a longer period of time. खराब ही होगा. Yes. इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ. Why it is important for all of us to become aware of our triggers? कितना जरूरी है इन इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. अगर हम लाइफ को बहुत पॉजिटिवली जीना चाहते हैं और एक कामनेस के साथ जीना चाहते हैं, एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ जीना चाहते हैं. एंजाइटी, डिप्रेशन, हमें पता है कि किस लेवल पर
चल रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि एक ह्यूमन लाइफ में सबसे बड़ा हैप्पीनेस का फैक्टर, पर्पस का फैक्टर होता है रिलेशनशिप्स, और वो आज के टाइम में सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। और वो रिलेशनशिप कोई भी हो, I'm just not talking about the romantic relationship, every relationship, है ना। तो एक हेल्दी रिलेशन के लिए, हेल्दी पीस ऑफ माइंड के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपने देखा होगा ज्यादातर लोग, 80% ऑफ लोग सिर्फ इसी में जीते हैं कि वो ब्लेम करते हैं। वो ब्लेम गेम ही चलता रहता है पूरी लाइफ की। अगर इनकी वजह से मैं परेशान हूँ, गवर्नमेंट की वजह से परेशान हूँ, मैं अच्छा इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इट टेक्स करेज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सेल्फ कि मुझे अपने आप को ठीक करना है। मेरे ट्रिगर्स मुझे अपनी पर्पस ऑफ लाइफ से, अपने डायरेक्शन से डेविएट कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो जब वो अवेयरनेस आती है ना, तभी लाइफ शुरू होती है। अदरवाइज तो बस यू नो दैट कि ज्यादातर लोगों से पूछो कैसे जी रहे हो, तो बस कहते हैं बस टाइम पास हो रहा है, काट रहे हैं, एक बर्डन फील होता है। क्योंकि लोग सोचते रहते हैं कि मुझे एंजाइटी क्यों हुआ, ओवरथिंकिंग क्यों हुआ, बट वो उस ट्रिगर को नहीं पहचान पाते हैं कि ऐसी कौन से सर्कमस्टांसिस हैं जो बार बार आपको उस सिचुएशन में ले जा रहे हैं। तो इतना जरूरी हो गया है कि उन ट्रिगर्स को पहचानना, सो दैट हम उनको अवॉइड कर सकें। People keep on replicating those mistakes. Yes. See, there is a research which says that 80% of the mistakes in life we do, we just repeat them. From childhood. रोज सेम मिस्टेक करते जा रहे हैं। And as I said that अगर इस चीज को ठीक नहीं किया तो we all have regrets in our life. We all have done something bad, said something bad, did something bad, जो हमें बाद में गिल्ट होता है कि अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हेडेड होता, थोड़ा सा लेवल हेडेड होता, तो मैं इस रिलेशनशिप को बचा सकता था। एंड द वर्स्ट जो हम देखते हैं कि कितना कुछ खराब गलत कर देते हैं दूसरे इंसान के साथ, जस्ट बिकॉज ट्रिगर हो गया। और ट्रिगर की वजह से वो सारे इमोशंस, वो गुस्सा, वो एंगर इतना ज्यादा होता है। ट्रैफिक में देखिए, चलते चलते एक ट्रिगर हो जाता है और छोटी सी बात में एक दूसरे को मार भी देते हैं। तो ये बेहोशी के जीवन से बचने के लिए it's high time now to identify the triggers, being aware of your trigger points. Right. अच्छा, can you share some of the common triggers which people face in day-to-day life, and what is their impact on their emotional and mental state? See, the moment we wake up, the trigger starts happening. Yeah. For example, let's say एक नॉर्मल एक इंसान की लाइफ को लेते हैं। मान लीजिए एक इंसान सुबह उठे तो सुबह उठ नहीं पाए, तो वो भी ट्रिगर हो जाता है कि मैं लेट हो गया, है ना। तो जैसे ही वो नेगेटिव थॉट आया माइंड में, तो सब इमोशनल इम्बैलेंस हो गया। अभी क्या हुआ, अभी मैं ऑफिस के लिए भी रेडी हो रहा हूँ, घर में बच्चे हैं, वाइफ है, खाना बना, किसी ने कुछ कह दिया, बच्चे ने कुछ कह दिया, तो वो भी ट्रिगर हो गया, है ना। लेट्स से वाइफ ने कह दिया कि आपको तो टाइम ही नहीं है किसी चीज के लिए, आपको तो ऑफिस ही दिखता है, काम ही दिखता है, वो ट्रिगर हो गया। फिर इधर से उधर ट्रिगर आ गया कि तुम क्या करते हो पूरा दिन, है ना। ऑफिस जाने में लेट हो गए ऑफिस जाने में लेट हो गए, तो वहां ट्रिगर हो गया कि क्या होगा, कैसे होगा, आई डोंट नो। और वो सोचते सोचते अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, ट्रैफिक में है, वहां किसी ने हल्का सा, पीछे की गाड़ी ने हल्का सा हॉर्न ज्यादा जोर से बजा दिया, वो ट्रिगर हो गया कि इनको समझ नहीं है क्या, ये क्या बात है, किसी ने ओवरटेक कर लिया, तो ट्रिगर हो गया। ऑफिस में किसी ने रिलेशन नहीं है, की बात वो ट्रिगर हो गया। कलीग के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, वो ट्रिगर हो गया।
when you are not happy at your workplace, उन्होंने इधर की trigger है। बात उधर कर दी। हाँ यस यस। एंड सैलरी नहीं बढ़ी है ना, एकदम से आपको कहीं जाने को बोल दिया, और शाम को आते आते अगेन एवरीवन नोस कि सबका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है, बस सभी आपस में लड़ने को रेडी होते हैं। फिर किसी ने कुछ हल्का सा वैसे ही कह दिया, भाई साहब थोड़ा जगह दे दीजिए। अगेन ट्रैफिक थोड़ा सा लंबा हो गया। ये पूरा दिन चलता रहता है। घर आए, घर आकर किसी ने कुछ काम बोल दिया, बच्चों ने कहा कि आप कुछ भी बोल दिया है ना, कि पापा आप ऐसे क्यों करते हो, आप थक गए हो, वो ट्रिगर हो गया है ना। सो फिर न्यूज देखा तो वहां ट्रिगर हो गया, सोशल मीडिया देखा तो वहां कुछ ट्रिगर हो गया। बट जनरली अगर ध्यान से देखें तो ट्रिगर्स कुछ कॉमन जो होते हैं वो यही होते हैं कि जब आपस में रिलेशनशिप में कुछ थोड़ी सी बात हो रही होती है, कुछ डिसीजन लेने होते हैं, तो एक इंसान मान लीजिए हल्के से गुस्से में भी बोल देता है कि आपको तो कुछ समझ ही नहीं है, आप तो मुझे समझते ही नहीं हो, आपको कुछ नहीं पता है। ये बहुत बड़ा इमोशनल ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि वो पुराना सब याद आने लग जाता है। वो दिखता नहीं है, बट वो रेज धीरे धीरे वो द स्ट्रेस लेवल, द एंजाइटी लेवल बढ़ता रहता है। और बच्चों से आप पूछेंगे तो बच्चों का ट्रिगर पॉइंट यही होता है कि पेरेंट्स जब उन्हें ये कह देते हैं या फील करा देते हैं कि यू आर नॉट वर्दी, आप इतने प्यारे नहीं हो, आप इतने अच्छे नहीं हो, आप ठीक है ना, कोई बात नहीं, यू आर जस्ट ऑर्डिनरी, है ना। स्कूल में जब टीचर्स बच्चों कि होमवर्क नहीं कर पाते हो, हाँ, और उन्हें बहुत ऑर्डिनरी समझा जाता है। लाइक उन टीचर्स के लिए 60 बच्चे हैं क्लास में, तो टीचर्स के लिए भी आसान नहीं होता सबको एक स्पेशल फील करवाना। राइट। अगेन दे हैव देयर ओन ट्रिगर्स, वो डिफरेंट चैप्टर है। तो ऐसे ही मान लीजिए एक हाउसवाइफ है, वो कहीं नहीं जाती, पर सास ने कुछ कह दिया तो वो भी उनका ट्रिगर पॉइंट हो जाता है। राइट। अच्छा ये बताइए, हाउ कैन वी शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव टू रिफ्लेक्टिव व्हेन वी आर इमोशनली ट्रिगर्ड? कैसे अपने आप को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रिएक्टिव से रिफ्लेक्टिव में? फ्रैंकली सही बताऊं तो ये सब चीजें पहले करनी होंगी। राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई क्रिकेट खेलते हैं, है ना। अब क्रिकेट में सीधा अगर ग्राउंड में जाएंगे, एकदम से बाउंसर आया तो हम प्रिपेयर नहीं थे, है ना, तो क्या होगा, एकदम से ट्रिगर ही होगा। ट्रिगर मतलब जो हमें समझ में आएगा हम वो करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। सिमिलरली ये लाइफ भी ऐसी ही होती है कि दिन में आने हैं ट्रिगर, सो पहले ही प्रिपेयर करना होता है अपने आप को, विच मीन्स कि सुबह सुबह अपने आप को या जब भी टाइम मिले थोड़ा रिफ्लेक्ट करना कि मुझे क्यों गुस्सा आया। मान लीजिए आज आपको गुस्सा आया किसी बात पे, तो जब आपको टाइम मिले तो स्क्रीन टाइम पे नहीं जाना, थोड़ा सा 10 मिनट अपने आप को कहना है कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, सो लेट मी सी कि मेरा ट्रिगर पॉइंट क्या है। क्योंकि ये ट्रिगर पॉइंट थोड़ा खुद के साथ बैठने से मिलेगा। आई नो अनकंफर्टेबल होता है, आई नो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता जितना कि रील्स होती हैं, बट लॉन्ग रन पे ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो पहले थोड़ा देखें कि मुझे गुस्सा क्यों आया, क्या मैं थोड़ा बेटर बिहेव कर सकता था, किस बातों ने मुझे इतना ज्यादा हावी किया कि मैं पूरा गुस्से में आ गया और मैंने ऐसा बोला। तो कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे कि एक क्वेश्चन और आप पूछ सकते हैं कि क्या पास्ट आया, पास्ट का कुछ बैगेज है, और 100% होगा ना। तो वो बातें जब दिखी, हमने रिफ्लेक्ट किया, तो फिर अब क्या करना होगा, अब थोड़ा चेंज करना होगा कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, आई विल बी अवेयर दैट माई माइंड इज क्रिएटिंग द ट्रिगर्स। वो पास्ट में जाने की कोशिश करेगा। एक सिंपल इक्वेशन मैं आपको बताऊं, हमारा जो माइंड है वो जानबूझकर सैडनेस को हमारी लाइफ में लाने की कोशिश करता है। वो जानबूझकर कुछ ऐसा
बोलने की कोशिश करता है कि आप भी परेशान हो जाओ और सामने वाला व्यक्ति भी परेशान हो जाए। तो जस्ट बीइंग अवेयर कि नेक्स्ट टाइम ट्रिगर में होकर मुझे नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना। बेस्ट थिंग इज उस समय आप एक रूल अपनाइए कि 30 सेकेंड्स मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कोई कुछ भी कह रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए आप होल्ड ऑन कर लीजिए। What you will find is you will in those 30 seconds you will find the options। मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि Right. 3-4 ऑप्शन आपको दिखेंगे हम्म, कि ये तो देखो, ये बोलूंगा तो फायदा नहीं है। एंड हम एक्सपीरियंस है उसमें, हमारे ऑफिस के जब बॉस हमें कुछ बोलते हैं तो वो ऑप्शन नहीं आता है गुस्सा करने वाला, है ना। तब उन केसेस में हमने अपने आप को समझाया होता है कि ये वाला ऑप्शन इज नॉट वायबल, दूसरा अपनाओ। सिमिलरली हम अपने आप को हर केस पे समझा सकते हैं पहले ही कि कुछ भी हो जाए मुझे गुस्से से नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए मुझे पास्ट को नहीं आने देना। आई विल रिस्पॉन्ड पीसफुली, लविंगली। अगेन क्यों बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि क्यों मैं प्यार से बात करूं, क्यों मैं लविंगली बात करूं। तो वो अगेन इट गोज बैक टू द पर्पस ऑफ लाइफ कि मुझे पीसफुली इसलिए बात करनी है बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं सही डिसीजंस लूं। मैं ट्रिगर्स में आकर, इमोशनल उन अपहीविल में आकर वो सब ना करूं। लविंगली क्यों करूं? बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरे प्यार से, मेरे अच्छे से बात करने से मेरे आसपास के जो लोग हैं वो समझे चीजों को, उनके अंदर भी प्यार आए, वो भी देखें कि प्यार से चीजें हो सकती हैं। ऐसे बहुत सी बातें हैं, है ना। तो जब हम ये करेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा पावर मिलेगी टू डील थिंग्स विद कामनेस एंड लव। तो ऐसा थोड़ा 30 सेकंड का आप रूल बनाइए कि मुझे नहीं बोलना। आप देखना 10 सेकंड बाद आपको थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स दिखेगा, फील होगा कि अच्छा प्यार से इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। वो स्ट्रेटजी होती है कि हैव ए पोज एंड देन स्पीक। Exactly. It gives you the opportunity to calm you a bit so that आप ईगो में आकर चीजें ना करें, आप थोड़ा रैशनल होकर करें। और एंड देन यू कैन इवेलुएट द प्रोज एंड कॉन्स कि अगर मैं ये बोलता हूँ तो इसके क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे। Absolutely. And instantly you will be able to take the right kind of decision. Yes. जब हम प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं बाद में, चाहे उस समय वो समझ नहीं आया, उस समय मोमेंट ऐसा था कि नहीं समझ आता, बाद में रिफ्लेक्ट किया, बाद में देखा, ओके अब जब नेक्स्ट इंटरेक्शन ऐसा होगा आई विल अप्लाई दिस। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बस इम्प्रूव करते रहना है। गलतियां होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, गिल्ट भी होगा, बट आइडिया इज की लर्निंग फ्रॉम दैट एंड अप्लाइंग इट to the next situation. Okay. मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इमोशनल ट्रिगर्स कैसे हमारी रिलेशनशिप, प्रोडक्टिविटी एंड इनर पीस को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इनर पीस की बात करूं तो हमें पता है जब ट्रिगर होता है, किसी इंसान ने कुछ बोला, है ना, और हमने अगर गुस्सा किया, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मुझे हल्का सा भी गुस्सा आ जाता है तो मेरे तो हाथ ऐसे होने लग जाते हैं, है ना। एक अजीब सा डर आने लग जाता है और आपके गट में, है ना, आपके पेट में आपको एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। ये साइंस हैं किस चीज के कि आपका जो हार्मनी होनी चाहिए थी वो नहीं है, कुछ तो हुआ है। पैनिक क्रिएट हो गया है, पैनिक क्रिएट हो गया है। एंड ये हमारा ब्रेन जानबूझकर ये ट्रिगर करता है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि जब ब्रेन को ये दिखाई देता है कि कोई खतरा है, तो वो जो पहले, जब बहुत सालों पहले हम क्या करते थे, खतरा ह्यूमंस को किससे होता था? एनिमल से होता था, है ना। तो वो क्या करते थे, जब खतरा दिखता था, जब कुछ ऐसे दिखाई देता था कि कुछ तो इश्यू है, तो वो यहाँ ट्रिगर क्रिएट करता था, ट्रिगर ऑफ
एंगर, ट्रिगर ऑफ एनर्जी, ट्रिगर ऑफ एग्रेशन कि भागो, है ना। वो पूरे बॉडी में पूरा एनर्जी दे देता था उस समय नींद नहीं आती, है ना। उस समय पूरा चार्ज अप होते हैं हम Right. लोग, है ना। जब वो ठंडा हो जाता है वो सिचुएशन, तो ये जो हमारे ब्रेन में जो जैसे कोर्टिसोल बोलते हैं ना, कोर्टिसोल रिलीज हुआ जिस वजह से एनर्जी आई। अब वो एनर्जी उस मोमेंट के लिए तो चाहिए थी, लेकिन उसका थोड़ी देर में इफेक्ट नेगेटिव होगा, विच मीन्स यू विल फील टायर्ड, यू विल फील कि किसी ने पूरी एनर्जी आपकी खींच ली है, Right. है ना। Right. क्योंकि उस मोमेंट पर वो इतनी एनर्जी चाहिए थी, तो गुस्सा होने के लिए, इरिटेट होने के लिए, गलत बोलने के लिए इतना एनर्जी चाहिए होता है, और बाद में उसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म पे, जैसा मैंने कहा कि एग्जॉस्ट फील होता है, आंखें लाल हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म पे हर एक बॉडी ऑर्गन अफेक्ट होता है, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो। इस वजह से धीरे धीरे हमारी जो फिजिकल हेल्थ भी खराब होने लग जाती। सेकंड, अगेन जैसा मैंने कहा, प्रोडक्टिविटी सबका एक्सपीरियंस है। इसी बात से रिलेट करके बताऊं तो डेस्पिरेशन में, एग्रेशन में कभी भी किसी का भी प्रोडक्टिविटी बेस्ट नहीं हुआ है। राइट। यस, आई नो, आपको बहुत सी वीडियो सुनने को मिलेंगी जिसमें लोग कहते हैं कि आपके अंदर एंगर होना चाहिए, हंगर होना चाहिए, है ना, मोटिवेशन होना चाहिए। तो बट रियलिटी ये है कि हमने लाइफ के जब सही डिसीजंस लिए हैं वो तब लिए हैं व्हेन वी आर एब्सोल्युटली काम, है ना। इवन साइंटिस्ट लोग भी, जो सबसे बड़ी से बड़ी इन्वेंशन हुई है वो तब हुई है जब वो शांत थे, है ना। तो ये डायरेक्ट करेक्शन है प्रोडक्टिविटी का। और रिलेशनशिप पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बहुत जरूरी है समझना कि पास्ट आता ही है, और पास्ट की वजह से हम प्रेजेंट को खराब करते रहते हैं, रिलेशनशिप्स को। पास्ट को नहीं आने देने के लिए ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये पास्ट से आ रहा है, दिस इज नॉट द रियलिटी। ये इंसान ने कुछ भी किया है, मैं रिजॉल्व कर लूंगा, पर पास्ट को नहीं आने दूंगा। तो वो बहुत जरूरी है। राइट। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिगर्स एंड हीलिंग विद देम? क्या रोल दोनों का? माइंडफुलनेस होता है जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट में होते हैं। राइट। व्हेन वी आर इन द प्रेजेंट, जब कोई, जैसा मैंने कहा, कोई पास्ट का बैगेज नहीं है ना, कोई ट्रिगर नहीं है, बट लेट्स से आप और मैं बात कर रहे हैं अभी, है ना, सब कुछ अच्छा है, तब भी मुझे पूरा दिन ये प्रैक्टिस करनी कि मुझे प्रेजेंट में रहना है, बिकॉज दिस इज वेयर वी आर, दिस इज वेयर द लाइफ इज एक्चुअली हैपनिंग, है ना। जब ये हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे से, तो जब ट्रिगर होता है ना, तो ये प्रैक्टिस हमें काम आएगी टू ब्रिंग आवर माइंड इन द प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है वो बताओ, पास्ट में नहीं जाओ। बार बार जब प्रेजेंट में लाएंगे ना, और सिमिलरली जब हम मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाता है मेडिटेशन मीन्स कनेक्टिंग विद द सेल्फ, और गहराई में जाना, माइंडफुलनेस के और गहराई में जाना, कि फीलिंग कि आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई एम फुल ऑफ पावर्स, आई हैव द कंट्रोल ऑन माई सेल्फ, है ना। उससे क्या होता है, उससे जैसे हम एक लेक में जाते हैं, एक झील को हमने देखा, है ना, अगर उसमें पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो हलचल में आ जाती है, बट थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जब वो शांत होती है तो हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो मेडिटेशन ये चीज करती है कि अगर हम मेडिटेशन में होते हैं तो हम रिफ्लेक्ट कर पाते हैं अपनी कमियों को, अपने ट्रिगर्स को, अपनी ईगो को, अपने जो नॉट सो गुड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स को एक्नॉलेज कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, जो कि अदरवाइज दिखाई नहीं देगी। जैसे हम अवॉइड करते हैं अपने आप के साथ टाइम बिताना, दैट्स व्हाई वी आर ऑन सोशल मीडिया, इतनी बार मोबाइल चेक करते हैं,
जो लोग मोबाइल इतना चेक करते रहते हैं, अवॉइड करते हैं अपने आप को, अपनी ऑफलाइन लाइफ को, तो क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि मेरे अंदर ईगो है, हम्म, मेरे अंदर ये कमी है, मेरी रियलिटी डिस्टॉर्टेड है, मुझे हम्म, पता ही नहीं है कि मैं लाइफ को सही तरीके से नहीं देख रहा नहीं हूँ, देख रहा हूँ। क्योंकि हमने अपने माइंड को रेस्ट नहीं दिया। एंड दैट्स व्हाई डिप्रेशन, एंजाइटी, बर्नआउट, स्लीपलेसनेस हो रही है। इसलिए जितना टाइम, दिस इज द ब्रेवेस्ट थिंग यू कैन डू एक्चुअली राइट नाउ इन टुडेज वर्ल्ड, अपने आप को 10 मिनट बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के जस्ट बी विद योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ। आपके कितने गलत बिलीव्स, कितना डिस्टॉर्टेड रियलिटी, वो हट जाएगी एंड यू विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन योर शॉर्टकमिंग्स, अपने ट्रिगर्स को, अपने गलत चीजों को देख पाएंगे, और वो आपको पावर देगा उसे ठीक करने के लिए कि ओके, ये है, सब में कमी है, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है किसी को, मुझे कुछ दिखावे वाली जिंदगी नहीं जीनी है कि आई एम परफेक्ट, एवरीथिंग इज गुड। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि उन्हें पता ही नहीं कि वो डिप्रेस्ड है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो एडिक्टेड है। तो इसलिए एक रियलिटी में जीना है, और रियलिटी में जीने के लिए मेडिटेशन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। राइट। अच्छा, कोई अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहता है और इमोशनल ट्रिगर्स पे काम करना चाहता है, लाइक हाउ कैन ही ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ एंड हील विद इमोशनल ट्रिगर्स? सो कैन यू सजेस्ट सम ऑफ द प्रैक्टिकल डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉर देम? क्या करना चाहिए उनको? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इवन बच्चों को भी ये पढ़ाता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है, और वो है कि ये प्रैक्टिस करना दैट आई एम नॉट माई माइंड, राइट, आई एम नॉट माई थॉट्स। क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू आ जाता है, हम जो भी सोचते हैं हमें लगता है ये सच है, इसीलिए उन थॉट से थोड़ा गैप बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसी के फ्लो में जाते हैं और हमसे गलती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक थॉट, जैसा हमने बात भी की, एक किसी ने कहा कि आप अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट गुड, तो एक थॉट आया कि मैं सही में अच्छा नहीं हूं क्या? तो फिर एक, अगर आपने थॉट नेगेटिव क्रिएट कर दिया, चाहे बाहर से आया है ना, ट्रिगर हुआ, तो हमारा माइंड, उससे तो यही काम है, वो 100 of the thoughts will create in just a minute, just like चैट जीपीटी इतने सारे थॉट्स आपको देगा कि देखो, नहीं हो आप अच्छे, देखो आपने 10 साल पहले उस इंसान के साथ ऐसे किया था ना, आपने चोरी की थी ना, आपने झूठ बोला था ना, आपने उनकी हेल्प नहीं की थी ना। इतने सारे थॉट्स जब एक साथ आ जाएंगे ना, तो वो रियलिटी लगने लग जाती है कि हाँ, अच्छाई दिखेगी ही नहीं, है ना। नाउ द पॉइंट इज कि हम, जो एक अच्छा इंसान भी है, जो सही में अच्छा है, जेन्युइनली अच्छा है, क्या उसने कभी कुछ गलत नहीं किया? उसने भी बहुत मिस्टेक्स की है ना। बट उस इंसान के अंदर एक रैशनल थॉट आती है कि गलती हुई है, पर मुझे उस गलती में जीना नहीं है, उससे सीखना है और अब इम्प्रूव करना है। लेकिन ये कब होगा? जब मैं ये कहूंगा कि मैं मेरा माइंड नहीं हूं, मैं मेरी थॉट्स नहीं हूं, मेरे माइंड में थॉट्स आएंगी एंड 80% थॉट्स विल बी नेगेटिव। रीजन बहुत सारे हैं। इंटरनल रीजंस ये हैं कि पास्ट के ट्रिगर्स हैं जो हील नहीं हुए हैं। एक्सटर्नल रीजंस ये हैं कि हम जो सोशल मीडिया पर कंटेंट देखते हैं वो इतना पॉजिटिव नहीं है, इधर उधर की बातें सुनते हैं, गलत बातें सुनते हैं, तो वो तो थॉट्स आएंगे ही। I remember one of my friend who is like doing everything good, like उसने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया। He said to me कि हितेश भाई, पता नहीं यार, एकदम से माइंड में थॉट आया कि ना इस इंसान के साथ गलत कर दो। एंड आप टीनेजर से पूछोगे, लोगों से पूछोगे, हम सबसे एक इंट्रूसिव थॉट्स हम सबके अंदर आती है। मैं अपने आप को सेल्फ हार्म कर दूं, किसी और को हार्म कर दूं, है ना, कुछ गलत कर दूं।
ये सब अगर हम रियलिटी मानने लग जाए तो क्या होगा? और कुछ लोग मानते हैं सैडली, है ना, इसीलिए वो एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करना, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम अ सोल। जैसे आपने स्टार्टिंग की सेशन की है ना, ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम अ सोल, बट व्हाट काइंड ऑफ सोल? आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ कंपैशनेट सोल। राइट। इसे दूसरी टर्म में बोलते हैं ऑब्जर्वर। आई एम एन ऑब्जर्वर। मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं मेरी थॉट्स नहीं हूँ। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो चेंज भी कर पाएंगे, है ना। तो वो बिलीफ लेवल चेंज होगा। तो आप देखना, जब ट्रिगर होगा ना, तो आपको दिखेगा कि ये ट्रिगर मैं नहीं हूं, ये तो मेरा माइंड है, बट आई हैव द पावर टू चेंज माय थॉट प्रोसेस। वो सेल्फ टॉक की आदत है ना, विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। पहला तो हमने ये सेल्फ टॉक ही है, आई एम नॉट माई माइंड। सेकंड इज डू अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉक्स। हम करते तो हैं लेकिन वो अनकॉन्शियस होता है, वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक ज्यादा करते हैं। हाँ, कॉन्शियसली पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है ना। जैसे बच्चों को जो सिंपल बताया जाता है वो क्या, कि बच्चों आपको खुद से बात करनी है कि आई एम कंपैशनेट, आई एम स्पेशल, आई एम पावरफुल, आई एम लविंग। कोई और मुझे प्यार करे ना करे, बट आई लव माई सेल्फ, है ना। बिल्कुल बेसिक सी बात है, पर फ्रेंकली स्पीकिंग ये छोटी सी लाइन ना बहुत गहरी है। एंड ट्राई टू फॉलो नेवर सेड आई स्पिरिट। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आई कैन डू दिस, आई हैव द गट्स, देन नथिंग इज डिफिकल्ट। आई कैन डू दिस, लाइक यू सेड, आई कैन डू दिस। अब इसे थोड़ा कनेक्ट करें कि हम कहेंगे कि आई कैन डू दिस, तो माइंड कहेगा क्यों, व्हाई यू कैन डू दिस। तो कहना पड़ेगा बिकॉज आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, आई हैव द स्किल्स to do this. I have the skills. I am complete. I don't need anyone or anything to make me feel that. I am confident. है ना? Right. अब ध्यान से देखिए, बात बिल्कुल छोटी सी है, पर यही एम्प्टीनेस है जो हमें सब गलत चीजें करवाती है। चाहे लोग एडिक्टेड हो, चाहे सोशल मीडिया एडिक्टेड हो, चाहे कांस्टेंट रील पे स्क्रॉलिंग करते रहते हो। तो ये छोटी छोटी बातें, कुछ एक मंत्रास कुछ लाइफ में होने चाहिए कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरा लाइफ में एक बहुत बड़ा पर्पस है जो मैं फुलफिल करने आया हूँ, डिस्ट्रैक्शंस से मैं फ्री हूँ, आई एम हेयर टू डू समथिंग गुड, समथिंग मीनिंगफुल, आई एम पावरफुल एंड आई एम हेयर टू लर्न। गलती करूंगा और उससे सीखूंगा और आगे इम्प्रूव करूंगा। ऐसे बातें करते रहने से हमारे अंदर एक पावर डेवलप होगी, और वो जो हमारा माइंड बार बार हमें पास्ट में लेके जाने की कोशिश करता है, उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। सिमिलरली, और अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात करूं तो मैंने थोड़ा सा टच भी किया, प्लान इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह बेस्ट टाइम होता है, कोई ट्रिगर्स नहीं होते हैं। So just talk to yourself. अपने दिन को, they say that, आपका भी अनुभव होगा कि सुबह सुबह ही ना लगभग हमें आइडिया लग जाता है मेरा आज का पूरा दिन ऐसा जाने वाला है ना। यू गेट द आइडिया, यू गेट द एनर्जी कि यार आज तो ना मजा सा नहीं आएगा, या आज तो अच्छा सा फील हो रहा है। आइडिया ये सुबह सुबह ही अपने आप को कहना कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं अपने ऊपर काम करूंगा, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी लवफुल। सिचुएशंस आएंगी, बट उन सिचुएशंस में भी मुझे बहुत प्यार से, बहुत कामली चलना है, बहुत अच्छे से चलना है। आई हैव द पावर, आई कैन डू दैट। मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जितना जितना सुबह अपने आप से ये बात कर लेंगे ना, आप देखना आपके एफर्ट आधे हो जाएंगे जो हम पूरा दिन अपने मन को समझाने में लगे रहते हैं, है ना। एंड लास्ट पॉइंट आई वुड से कि बार बार अपने आप से ये बात करना कि मेरी लाइफ का एक पर्पस है। इंटेंशंस के साथ जीना है। इंटेंशंस के साथ जीना मतलब कि पता होना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सबको कॉपी नहीं करना कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नहीं। आई नो माई पाथ,
ज्यादा नहीं पता तो इतना पता है कि अपने टाइम को मुझे मीनिंगफुल वे में जीना है और पीस ऑफ माइंड के साथ, कामनेस के साथ, सैनिटी के साथ जीना है। तो उसे फॉलो मुझे अच्छे से करना है। राइट। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, सिंस आपने बताया कि मेडिटेशन का बहुत अहम रोल है इमोशनल ट्रिगर्स को हील करने में, तो क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए कोई एक छोटी सी प्रैक्टिकल टिप करके बता सकते हैं जिसको वो करके अपने आप को कूल एंड काम रख सकें? जैसा मैंने कहा तो उसी को ही एक 2 मिनट 3 मिनट मेडिटेशन कमेंट्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अभी मेडिटेशन कर लेते हैं 2 मिनट, हाँ है हाँ। ना। तो ये जैसे गाइडेड मेडिटेशन होता है। द आइडिया इज कि खुद से जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेडिटेशन है, खुद के थॉट्स को चैनलाइज कर रहा हूँ जो हमें हील करता है और हमें एक पहले ही विजुअलाइज करवा देता है कि पॉजिटिव एनर्जी भेज देता है कि कुछ भी हो जाए आई विल डू दैट, है ना। तो ये करना चाहिए और इससे बहुत हेल्प होती है। आप मेडिटेशन आंखें खोलकर, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। मैं आंखें खोलकर करता हूँ, हम हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आंखें खोलकर करते हैं। रीजन बीइंग, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि कर्म योग, है ना। तो इससे फायदा क्या होता है, मेरा क्या फायदा हुआ कि मैं वॉक करते हुए भी ये सेल्फ टॉक खुद से कर पाता, काम करते हुए भी कर पाता हूँ। तो इट्स लाइक न्यूरोप्लास्टिसिटी, इट्स लाइक कि हैबिट हो जाती है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होगा तभी मैं कर पाऊंगा, थोड़ा सा चलते करके फिरते भी दिखाएंगे? हो जाए। हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल। चलिए, अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आएंगे और पूरी तरह से प्रेजेंट में ऑब्जर्व करें अपने थॉट्स को इस समय कि क्या वो पूरी तरह से प्रेजेंट में है, क्या चल रहा है माइंड में। अगर कोई और बात माइंड में चल रही है तो उसे प्रेजेंट में लाएंगे और समझाएंगे कि इस समय मुझे खुद के साथ कनेक्शन को डेवलप करना है। अपना पूरा ध्यान सेंटर ऑफ फोरहेड, जहां तिलक लगाते हैं वहां पर लाएंगे। एक लाइट को, एक स्टार को एक्सपीरियंस करेंगे और खुद से बात करेंगे कि मैं ये स्टार हूं, एनर्जी हूं, सोल हूं, बहुत पावरफुल हूं, मैं आप में कंप्लीट हूं, भरपूर हूं, प्योर हूं। मैं मेरा मन नहीं हूं, मेरा माइंड बहुत से थॉट्स क्रिएट करेगा, एंगर के, रेज के, सैडनेस के, डिस्ट्रैक्शंस के। वो कहेगा कि उन्होंने गलत बोला तो आप भी उसी टोन में बात कीजिए, ये रील्स देख लीजिए, ये यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। वो एक्सक्यूज देगा अपने आप के साथ समय ना बिताने के लिए। प्यार से बात करेंगे कि 10 मिनट मुझे खुद के साथ बिताने हैं, खुद से बात करनी है। आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम एन ऑब्जर्वर। मैं अपने थॉट्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता हूं और बहुत प्यार से अपने मन को समझा पाता हूं कि ये थॉट सही नहीं है, राइट नहीं है। इसकी जगह एक बहुत पावरफुल लविंग थॉट उसे देता हूं
कि मैं हर किसी को एक्सेप्ट करता हूं वो जैसे है। मेरे अंदर कंपैशन है, करुणा है कि हर कोई परेशान है। पर्सनली नहीं लेना मुझे। मेरे अंदर पावर है उनको कॉपी नहीं करके खुद डिसाइड करना कि मैं कैसे रिएक्ट करना चाहता हूँ, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, रिएक्ट नहीं। I am powerful. I am focused on self. I decide how I want to be, irrespective of others' behavior. किसी और का बिहेवियर ये डिसाइड नहीं करता कि मुझे कैसे बोलना है, कैसे सोचना है। I always choose to be loving, understanding, compassionate, because this is who I am. I am a soul. I am a soul with purpose. Thank you. तो ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। It's very soulful. Yes, it is actually. 2 मिनट में ही इतना हीलिंग हो जाता है। Even I am feeling very much light. I am working since morning and I was feeling little stressed. How will I be able to do this podcast? Because since morning I am working. But जो आपने ये प्रैक्टिस करवाया इससे I am feeling very much comfortable. 10-2 मिनट लगते हैं खुद को सेंटर करने के लिए। शुरू में प्रॉब्लम होती है, खुद से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, बट एक बार प्रैक्टिस हुई तो आप देखना बहुत मजा आएगा। It will bring some kind of transformation in everyone's life. डेफिनेटली ये 2 मिनट में ही वो जो न्यूरॉन्स थे ना वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हितेश जी, आपने बहुत ही इंसाइटफुल इनपुट्स दिए इस टॉपिक पर। और ना केवल मुझे सब कुछ जानने में बहुत अच्छा लगा, बल्कि मुझे भी अब इजी होगा कि मैं बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो मुझे इमोशनली इम्पैक्ट करते हैं। नाउ आई एम इन अ बेटर पोजिशन टू आइडेंटिफाई इवन माई ओन ट्रिगर्स and how I can implement these spiritual tips which you have given to all of us in order to heal my emotional triggers. और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि हम सब इमोशनल पर्सन्स हैं, ठीक है ना। लाइफ कभी भी एक तरह से ऐसे फ्लो में नहीं चलती है। लाइफ इज ए रोलर कोस्टर राइड, ऐसे चलती है। कभी लाइफ में अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, रिलेशनशिप क्राइसिस होते हैं, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट होता है, फ्रेंड्स के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। देयर आर सो मैनी इमोशनल ट्रिगर्स जो हमें हिट करते हैं, हमें इमोशनली रिएक्ट करने के लिए प्रोवोक करते हैं। तो हमें हर किसी के ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं। हमें सबसे पहले उन ट्रिगर्स को पहचानना होगा एंड उसके लिए जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग। आपको अपने अंदर ये जानना होगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके साथ पॉजिटिव वाइब्स चल रही हैं या नेगेटिव वाइब्स। देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट सेल्फ रेगुलेशन। You have to regulate your emotions, means convert your negative emotions into positive emotions, and that is the concept of emotional intelligence. और आजकल के इस भागदौड़ के जीवन में इमोशनल इंटेलिजेंस को इनकलकेट करना बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए दुनिया भर में बहुत सारी इमोशनल इंटेलिजेंस पर वर्कशॉप्स होती हैं। तो आप अपने इमोशंस को पहचानिए। आप दूसरे को कॉपी मत कीजिए कि दूसरे की लाइफ में बहुत हैप्पीनेस है और आप बहुत ही टफ फेज से गुजर रहे हैं। और जब आपके अंदर वो रेजिलियंस आ जाएगा, जब आप उन अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी सीख जाओगे, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए आगे सरवाइव करना। और एक चीज याद रखिए, जब अंधेरा आता है ना, तो अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। बट आपको उस टफ टाइम को बहुत ही पेशेंटली हैंडल करना होगा। और अगर आपने उस टाइम पे क्रम्बल कर गए, आपने हेजिटेट किया या आपको फियर हुआ, तो यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन ए डीप ट्रबल।
और जो कि लीड करता है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग एंड अल्टीमेटली टू डिप्रेशन। और जब एक इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके, उन ट्रिगर्स को लेके डिप्रेशन में चला जाता है, तो बहुत मुश्किल स्थिति में आ जाता है, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। कितने सारे सेलिब्रिटीज अपनी रियल लाइफ स्टोरी को शेयर करते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस है, उनके साथ भी ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं और सबने अपनी अपनी स्टोरीज को शेयर किया है। ठीक है ना, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हमारे इंडिया के लेजेंडरी टेनिस प्लेयर हैं लिएंडर पेस, जिन्होंने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम्स जीते टेनिस में, और उनको एक टाइम पे आके कैंसर हो गया, बट उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने उसको, उस सिचुएशन को ओवरकम किया। मीन्स जो ट्रिगर्स उनको हिट कर रहे थे ना, उनको उन्होंने कंट्रोल किया कि आई कैन डू दिस, आई विल फाइट दिस एंड आई विल कम आउट ऑफ दिस। और क्या हुआ, वो उस सिचुएशन से जीत गए। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन अनफेवरेबल चीज़ों को कितना अपने अंदर लेके जाते हैं। और बार बार अगर आप पुराने एक्सपीरियंस को लेके बैठ जाओगे, उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे, ना केवल उसका आपकी करंट रिलेशनशिप पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बल्कि आपकी वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन हो जाएगी। तो देखिए कितने इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इमोशनल ट्रिगर्स के। इसलिए हम सब के लिए बहुत जरूरी है इन ट्रिगर्स को पहचानना, डायग्नोज करना, और जो भी हितेश जी ने टिप्स आपको दी हैं, उन टिप्स को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, सुनिए ध्यान से, और डे बाय डे इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। और मेडिटेशन को जरूर अपनी लाइफ में अपनाइए। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो जो 2 मिनट का टिप सर ने दिया है, आप उतना ही कर लीजिए। तो जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, आप वो 2 मिनट का मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। यू विल अगेन फील कूल एंड कंफर्टेबल। ठीक है ना, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, जिंदगी चलने का नाम है, चलते रहिए और इन ट्रिगर्स पर कंट्रोल करना सीखिए। मैं बहुत बहुत आपसे उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्वर्जेशन आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगा होगा, और जो जितनी भी टिप्स हितेश जी ने आपको दी हैं, आप धीरे धीरे इन पर काम करना शुरू करेंगे, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और ज़्यादा बेनिफिशियल, इम्पैक्टफुल हो सके और आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर listening to us, and stay healthy, stay safe and have a wonderful life. Thank you so much हितेश जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हम सबको इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अपने इंसाइटफुल टिप्स दिए। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में फिर आपसे किसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक और पॉडकास्ट हम करना चाहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल श्योर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, एंड थैंक यू सभी को जो भी सुन रहे हैं, एंड बेस्ट विशेस टू देम कि आई होप कि ये कुछ प्रैक्टिस आपको काम आएगी, करेंगे तो बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। याद रखिएगा, जीवन को गुजारना नहीं है, जीवन को जीना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेरिक्विजिट फॉर लिविंग हेल्दी लाइफ। सो स्टे सेफ and live a healthy life. I will see you soon with a new podcast and with a new guest. Thank you so much. Thank you, sir.